Amen. Let's get into the word now. आइए इस समय परमेश्वर के वचनों की ओर I जाएं। want you to turn with me to the book of Leviticus chapter 6, please. मैं चाहता हूं कि आप लेवी व्यवस्था इसके 6वें अध्याय में मेरे साथ आइए And let's read from verse 8. और 8वें वचन से हम आगे पढ़ें। Then the Lord spoke to Moses, saying, और फिर यहोवा ने मूसा से कहा, Command Aaron and his sons. हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा दें। You see the first point, write this down. देखिए पहला ही पॉइंट आप देखिए, इसे लिख लीजिए। Whenever there is an instruction from God, जब कभी परमेश्वर की ओर से एक निर्देश दिया जाता है, it is not a suggestion, और ये कोई सलाह नहीं है, it is a command. लेकिन ये आज्ञा है। Touch your neighbor and say, it is a command. अपने बगल वाले से छुए और बोले कि ये आज्ञा है। An instruction can be ignored. निर्देश जो है वो नजरअंदाज किया जा सकता है, Advice can be put aside. और सलाह जो है एक तरफ रखी जा सकती है, But a command cannot be ignored. लेकिन आज्ञा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। Hallelujah. Hallelujah. Every word of God to us, even today, is a command of God. हर एक परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज भी आज्ञा है। Now here's what it says. अब सुनिए क्या कह रहा है। Command Aaron and his sons, saying, This is the law of the burnt offering. हारून और उसके पुत्रों को यह आज्ञा देकर यह कहा कि होम बलि की व्यवस्था यह है, The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning. होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, And the fire of the altar shall be kept burning on it. और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे। Notice the second point over here, और दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर गौर करें, that the fire on the altar should be kept burning. वेदी पर की आग जो है हमेशा जलती रहे। Now let's go to verse 12 now अब 12वें वचन में जाएं, of the same chapter. उसी अध्याय का 12वां वचन। And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. और वेदी पर की अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। And the priest shall burn wood on it every morning. और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाया करें, And lay the burnt offering in order on it. And he shall burn on it the fat of the peace offerings. और होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया A करें। fire shall be always be burning on the altar. It shall never, never go out. वेदी पर आग लगातार जलती रहे और कभी बुझने न पाए। Very interesting. और बहुत ही दिलचस्पी भरी बात, 3 times in one chapter. एक ही अध्याय में 3 बार In a few verses rather. और कुछ ही वचनों में इसके बजाय The Lord tells his people to keep the fire burning on the altar. परमेश्वर अपने लोगों से ये कहता है कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे। 3 times God is saying, let the fire burn, let the fire burn, let the fire burn on the altar. 3 बार परमेश्वर कह रहा कि वेदी पर आग जलती रहे, वेदी पर आग जलती रहे, वेदी पर वो आग वो अग्नि जलती रहे। You know, the scripture says, out of the mouth of 2 or 3, every word shall be confirmed. Come on. देखिए वचन कहता है कि 2 या 3 जन की गवाही के द्वारा वचन की हामी भरे दृढ़ हो जाए। An altar is a place where sacrifices are made. वेदी ऐसा स्थान है जहां पर बलिदान चढ़ाए जाते हैं, And for the sacrifices to be offered properly in the right manner, the fire must be there. और वो बलिदान जो है सही रीति से चढ़ाने के लिए वहां पर आग का होना जरूरी है। Listen to this very और इस carefully. बात को गौर से सुने, For any sacrifice to be accepted by God, the fire should be there. किसी भी प्रकार का बलिदान यदि परमेश्वर ग्रहण करना तो उसके लिए वहां पर अग्नि या आग होना जरूरी है। Fire is needed on the altar. आग वहां पर वेदी पर होनी बहुत ही जरूरी Come है। on, lift your voices and say, fire is needed on the altar. अपनी आवाजों को उठाओ और कहें कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे। An altar without the fire becomes a desecrated altar. और बिना आग के जो वेदी है वो जो है अयोग्य इस प्रकार से वेदी हो जाती An है। altar lacking the fire of God is a polluted altar. ऐसी वेदी जिसमें परमेश्वर की आग नहीं है वो मानो दुष्प्रभावित इस प्रकार से वेदी है। For an altar to remain consecrated, to be sanctified, fire is needed to protect the altar. और वेदी पर वेदी हमेशा वो शुद्ध रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए उस वेदी पर हमेशा आग होना जरूरी है। Let's समझ jump पा to रहे the New Testament. हैं? आइए नए नियम की ओर इस समय हम आए, And the same Holy Spirit gives us the same instructions. और वही पवित्र आत्मा वही निर्देश इस समय हमें दे रहा है। Go with me to the book of 1 Corinthians chapter 3 and verse 16. पहला कुरिन्ती का 3रा अध्याय के 16वें वचन में मेरे साथ आए। And Paul writes through the inspiration of the Holy Spirit. और पौलुस पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये लिख रहा है। He says, do
you not know वो कहता क्या तुम नहीं जानते that your body is the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Now notice this. अब इस बात पर गौर करें, The temple of God. परमेश्वर का मंदिर। What is the temple of God? और परमेश्वर का मंदिर क्या है? The body is the temple of God. और शरीर परमेश्वर का मंदिर The है। body is the temple of God. और शरीर परमेश्वर का मंदिर है। And every temple और हर एक मंदिर, has an altar. हर एक मंदिर में वेदी होती So है। what is the altar of the human body? और इसलिए मानवीय शरीर का वेदी क्या है? Our altar of the human body is the spirit man. मानवीय शरीर का जो वेदी है वो आत्मिक मनुष्य है। The spirit of man is the altar of God. मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की वो वेदी है। It's that altar और ये वो वेदी है where those sacrifices, are offered and it ascends the throne of God. जहाँ Hallelujah. पर वो बलिदान चढ़ाए जाते हैं और उसका सुगंध जो है परमेश्वर तक पहुंचता है। When you praise God, देखिए जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, you please understand this. आप इस बात को कृपा कर समझें। When you offer spiritual sacrifices, your fastings, your whatever to the Lord, जब आप आत्मिक बलिदानों को चढ़ाते हैं, आपका उपवास और जो भी आप प्रभु को चढ़ाते हैं, your sacrifices, your forgiveness, those things, they ascend from the spirit man. आपका बलिदान, आपका क्षमा करना, ये सारी बातें आपके आत्मिक मनुष्य से वो जो है पर सुगंध जाता Your है। prayers. आपकी प्रार्थनाएं। Hallelujah. हालेलुया। So you see, your body is a तो temple, देखिए आपका शरीर वो मंदिर है, but the spirit man is that altar. लेकिन आत्मिक मनुष्य जो है वो वेदी है। Now I will show you something that's very, very powerful. अब मैं बहुत ही कुछ सामर्थ्यवान ऐसी बातों को बताना चाहूंगा। I believe, listen to me. मेरी बातें सुनिए। I told you, I was just getting ready. I was praying in the spirit, and the Holy Spirit said, those who receive this word in their spirit, their prayer lives are just going to just blossom in the name of और Jesus. पहले मैंने आपको बताया, Yes, जैसे मैं yes, संदेश yes. के लिए तैयार हो रहा था, मैं आ रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा कि जो लोग इस प्रगटीकरण को अपनी आत्मा में ले लेंगे, उनका जीवन, प्रार्थना का जीवन बहुत ही खिलने वाला है, बढ़ने वाला है। I want you to go to 1 Thessalonians chapter 5 and verse 19. पहले तो सुलोनिकी इसका 5वां अध्याय 19वें वचन में मैं चाहता हूं कि आप Let's go there. आइए उस वचन में जाएं। And I'm reading from the Amplified Version now. और एम्पलीफाइड वर्जन से मैं पढ़ रहा हूं। It says, do not quench. The word is suppress or subdue the Holy Spirit. और इस प्रकार से लिखा है, आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को न बुझाओ. Do not quench, do not suppress, do not subdue the Holy Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा को बुझाना नहीं है, परमेश्वर की आत्मा को दबाना नहीं है, परमेश्वर की आत्मा को बुझाना नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Go with me to Ephesians 4 and verse 30. Again, I'm reading from the Amplified. इफिसियो इसका 4था अध्याय का 13वां वचन, दोबारा मैं एम्पलीफाइड बाइबल से पढ़ रहा हूं। It says, do not grieve, do not offend, do not sadden the Holy Spirit. और इस प्रकार से लिखा है 4:30 में कि पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करना, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना। You see, church, आप देखें कलीसिया, your spirit man is the altar, आपका आत्मिक मनुष्य वो वेदी है, but the Holy Spirit brings the fire on that altar. लेकिन पवित्र आत्मा उस वेदी पर आग ले आता है। How many understanding right आप now? में से कितने जन समझ I रहे want you हैं? to understand this truth. मैं चाहता हूं कि इस सच्चाई को आप जानें। Your body is a temple. आपका शरीर वो मंदिर है, Your spirit man is the altar, आपका आत्मिक मनुष्य वो वेदी but है, the fire comes from God. आग परमेश्वर की, और Spirit of God, He brings the fire. Hallelujah. वो आग जो है परमेश्वर का आत्मा, और वो उस आग को ले आता है। Look at पवित्र आत्मा। Prophet Elijah. और एलिया भविष्यद्वक्ता को जरा देखें, What did he do? और उसने क्या He किया? repaired the altar. उसने उस वेदी की तैयारी की, He तैयार put किया, the और sacrifice. उसने बलिदान भी रखा, But then he said, और उसने कहा the fire must come from और God. आग जो है वो स्वर्ग It से was the उतरनी है। Spirit of और God. वो परमेश्वर का आत्मा ही था। Somebody shout hallelujah. हालेलुया, कोई चिल्लाए। Church, the fire must fall. कलीसिया, वो आग गिरनी है। Lift your hand and say, Holy Spirit, fire come. अपने हाथों को उठाकर कहें, पवित्र आत्मा की आग आ Come जाए, upon my altar, O और God. परमेश्वर मेरी वेदी पर आग की Revive अग्नि my आ जाए, prayer और altar. मेरे प्रार्थना की वेदी पर आग Revive लगे। my worship मेरे altar. आराधना की वेदी को मरम्मत Shabra कीजिए। dekho sakamande. Begin to pray, begin to pray. प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। Today your prayer life is growing. आज आपकी प्रार्थना का जीवन बढ़ रहा है। All that stagnation is being removed in Jesus' name. सारा जो
अटकापन था वो यीशु के नाम से निकल रहा In the दूर हो name रहा। of Jesus. यीशु के नाम से Somebody receive that fire anointing right इस now. अग्नि के अभिषेक को इसी समय You will प्राप्त करें। feel that stirring. आप वो आत्मा का उभारा जाना प्राप्त करें In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. 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 तो Now, आमीन कहें। why should we keep the fire burning on the altar? There is a purpose to what God says. क्यों उस वेदी पर अग्नि जलती ही रहनी चाहिए? उसका उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का मकसद है उस बात Now, के पीछे। if you don't keep the fire burning, देखिए यदि आप आग को जलता नहीं रखेंगे there are consequences. तो उसके परिणाम हैं। You know, God used this great man of God called Reinhard Bonnke. देखिए परमेश्वर ने ये महान परमेश्वर के जन रेनॉल्ड बॉन्के उनका बहुत ही उपयोग किया। I had the privilege to meet the man of God Reinhard Bonnke in Singapore. और सिंगापुर में परमेश्वर के महान दास जो रेनॉल्ड बॉन्के उनसे मिलने की मुझे मौका मिला। He was quite senior then, you know, but then still the fire of God was not dim. और वो तभी बुजुर्ग या बड़े थे, पुण्य थे, तभी भी परमेश्वर की अग्नि उनके अंदर बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। And he was sharing during his ministry time, he was sharing about this woman. और अपनी सेवकाई के दौरान एक महिला के विषय में वो बता रहे थे। And he said, और उन्होंने कहा this woman, you know, it was early in his ministry. और ये महिला देखिए उनकी सेवकाई की शुरुआत का ये समय था। She would come to him and say, man of God, a demon is tormenting me. और वो आकर कहता था परमेश्वर के जन देखिए अशुद्ध आत्मा मुझे बहुत ही तकलीफ दे रही है। Please help me. और कृपा कर मेरी मदद करें। So he prayed for her. और इसलिए उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की। She fell down under the power of God. और परमेश्वर के सामर्थ्य में वो नीचे गिर गई। She gave a testimony. और उसने गवाही दी। I'm free, I'm free. और मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हो गई। After a week, और एक सप्ताह के बाद again she came. दोबारा वो आई। Man of God, और हे प्रभु के दास, the demon is tormenting me. अशुद्ध आत्मा मुझे बहुत तकलीफ दे रही। सुन रहे Again हैं? he prayed. और दोबारा उसने प्रार्थना की। She उन्होंने। fell down. और वो नीचे गिर गई। Now the sad part is this. अब दुखित बात ये है She would come again. वो दोबारा आती थी। She would come again. दोबारा वो आता था। And she was known to him. और वो ये बात जो है उसको जानी हुई मानो थी। Listen to इस this. बात को सुने। Finally, he had a word from the Lord. अंत में प्रभु की ओर से उन्हें वचन प्राप्त हुआ। He asked her, और उन्होंने उससे पूछा, are you a follower of Jesus? क्या तू यीशु मसीह का अनुकरण करती है? She said, yes, yes, I'm a उसने कहा, follower हाँ, of हाँ, मैं Jesus. यीशु के पीछे चलने वाली हूँ। I love him and all that, you know. मैं बहुत ही प्रेम करती हूँ यीशु से। और He said, okay. उन्होंने कहा ठीक है, हाँ। He said, if a fly comes in a kitchen, उन्होंने कहा एक मक्खी अगर किचन में रसोई खाने में आ जाए, he says, will the fly sit on a stove that is burning or which is cold? तो वो स्टोव जो है वो जो जल रहा है उस पर वो मक्खी बैठेगी या तो फिर जो आग बुझ चुकी है, ठंडा हो चुका है स्टोव, उस पर बैठेगी। She said, that's very simple. उसने कहा बहुत ही ये तो आसान है। He says, the flies will always sit on a stove that is, you know, very cold. और उसने कहा कि वो जो मक्खी है, मक्खियां हैं, हमेशा ऐसा स्टोव जो बहुत ही ठंडा उसी पर बैठेगी। And he said, और उसने कहा lady, हे महिला, get on fire for God. और परमेश्वर के लिए पूर्णता से आग से भर जा। Demons will never harass you और again. अशुद्ध आत्मा कभी भी तुझे इसके आगे तकलीफ नहीं देगी। Hallelujah. हालेलुया। I don't know whom I'm speaking to. और मैं किससे बातें कर रहा हूँ इस समय Get जान on fire for God. और परमेश्वर के लिए आग से भर That जाए। demon of depression, that demon of oppression will stay 10 feet away from you. Hallelujah. और निराशा और हताशा का दुष्ट आत्मा आपसे 10 फीट दूर ही रहेगा। Are you listening right now? क्या आप इस समय सुन रहे There'll हैं? be a notice in hell. और ये जो है इस बात को नरक इस बात को जो है ध्यान देगा। Are you listening right now? क्या आप सुन रहे हैं इस There'll be समय? a notice. Touch everybody. Don't touch these people. Hallelujah. और वो जो है नरक में बात करेगा कि देखो ऐसे ऐसे लोगों को छूना नहीं। You know, when we were kids, देखिए हम जब छोटे थे, nowadays, you know, we guys have this PS4, PS5 and all, whatnot. I don't know. और अभी तो PS4, PS5 और क्या But we क्या used कुछ है। to run around in the neighborhood gullies, you know. लेकिन हम तो अगल बगल के गलियों में भागा करते थे। But there was one box. लेकिन वहां पर एक बॉक्स था There was one red box. और एक लाल बक्सा था। And on that red box, there was a skeleton face. और उस वो लाल कलर के बक्से पर वो जो है वहां पर खोपड़ी का आकार था। Now I know you're laughing at me. मैं जानता हूँ इस समय आप मुझ पर हंस रहे हैं Because you all are all wise people. क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिमान ऐसे लोग हो। But you see, I come from a village. लेकिन देखिए मैं तो गांव से आया हुआ You हूँ know, and all my friends were simple fellows, you know. और मेरे सारे मित्र बहुत ही सरल साधारण बच्चे थे, लड़के थे। So we used to look at that skeleton. तो वो जो खोपड़ी की ओर हम देखा And we used to करते थे invent all types of stories. और सारे प्रकार की कहानियां को हम मन घड़त कहानी बनाते थे। We used to tell each other, हम एक दूसरों को बोलते थे, there's a ghost inside that. अरे उसके अंदर एक भूत है, Never go near that. कभी भी उसके नजदीक मत And जाना। all the elders affirmed that. और सारे जो क्योंकि बड़े लोगों ने इस बात की हामी भरी है, इस प्रकार से हम आपस में बोला करते थे। They said, yes, there is a demon inside that. उन्होंने कहा हाँ हाँ उसके अंदर भूत है।
Never go near that. कभी भी उसके नजदीक मत जाना। And it was written over there. और उस पर लिखा हुआ था 440 volts. और 440 वॉट, Don't touch. और छूना नहीं। Even with our limited, we were in the 3rd or 4th standard, I don't know. और हमारे जितना भी स्तर था, हम तीसरी या चौथी कक्षा में थे, That much we knew to read. Do not touch. इतना तो हम पढ़ सकते थे कि छूना नहीं। Later on, I realized बाद में पता चला there was no demon और inside. वहां पर कोई भूत या अशुद्ध आत्मा That नहीं was an electric box, distribution box. था। इलेक्ट्रिक बॉक्स था। In the same way, और उसी प्रकार से you know, when a believer, when a Christian carries the fire of God, देखिए, जब एक विश्वासी एक मसीह जन परमेश्वर की आग को लिए चलता है, oh, the demons will not come near him. Hallelujah. अशुद्ध आत्मा बिल्कुल उस व्यक्ति के बिल्कुल नजदीक नहीं आता। Somebody lift your hand and shout fire. Hallelujah. हाथों को उठा और कहें आग। Lift your hands and make this prayer. Fire of the Holy Spirit, I need you. अपने Hallelujah. हाथ को उठा और प्रार्थना करें, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत In the है। name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Somebody open your mouth and begin to pray. Begin to pray. अपना मुंह खोले और प्रार्थना करने लग No जाइए। demon can touch your life कोई अशुद्ध आत्मा आपके जीवन को छू नहीं when you are सकता carrying the fire of जब God. आप परमेश्वर की आग को लिए चलते हो। Hallelujah. हालेलुया। Please listen. The first manifestation on the day of Pentecost was fire. कृपा करके सुनिए कि पहला On जो the- प्रकट है पवित्र आत्मा Wind का, came with पेंटिकोस्ट fire. के दिन में वो आग था, वो आंधी आई और आग वहां पर प्रकट हुई। Hallelujah. हालेलुया। Everybody there was a flame for everybody. सारे लोग, हर एक जन पर वहां पर आग की जीभ है जो है प्रकट Tell हुई। somebody there is a flame for you and for me. इसे Hallelujah. कहें कि आपके लिए और मेरे लिए आग की जीभें हैं। Personal fire. Hallelujah. व्यक्तिगत आग। आमेन। हालेलुया। There is a portion of fire for you. Hallelujah. आग का ऐसा हिस्सा है जो आपके लिए है। आमेन। Hey, hallelujah. Hallelujah. Everyone has a portion of fire. Lift your hand, receive your portion today. हर Hallelujah. एक जन को अपना In हिस्सा है, Jesus' आग का name. हाथ उठाएं और यीशु के नाम से अपने If you are आग not का reaching out, हिस्सा प्राप्त करें। If you are not reaching out, यदि आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, God will say, "Arey, this fire is unutilized. I'll give it to Michael." परमेश्वर Hallelujah. बोलेगा, अरे ये आग का उपयोग नहीं किया जा रहा, मैं अपने दूसरे बच्चे को दूंगा। In the name of यीशु के Jesus. नाम से। Somebody say, "Yes, I receive." कहें, हाँ मैं प्राप्त करता हूँ। Now आमीन। watch this. In the Old Testament, देखिए, पुराने नियम में very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात, Same thing is mentioned. वही बात बताई गई है। Go with me to Exodus 13. निर्गमन इसके 13वें अध्याय में मेरे साथ जल्दी आए। Exodus 13 verses 21-22. निर्गमन इसका 13वां अध्याय 21 और 22 वचन। The Lord went before the children of Israel in a pillar of fire. और परमेश्वर जो है इस्राएली लोगों के साथ आग का खंबा होकर वो चला। At the night, और रात के समय, especially in the night, विशेष तौर पर रात के समय, the Lord moved like fire. परमेश्वर आग के समान वहां पर Now, this मंडराता was था। not like some torch, we carry, और कोई वो टॉर्च के जैसा नहीं जो हम लिए चलते हैं, mashal, और मशाल के जैसा कुछ नहीं। It was a pillar of fire. और बहुत ही बड़ा खंबा था आग का। And the light could be seen. Now, please understand, there were more than 5 lakh people. और देखिए, याद रखें, कम से कम 5 Men. लाख से भी ज्यादा पुरुष की संख्या केवल 5 लाख से And we ज्यादा। don't know how much. So imagine a pillar of fire huge enough to give light to all these people. और जरा कल्पना करें कि ये आग का खंबा इतना बड़ा था कि इतने सारे लोगों को वो उजाला दे सके। I had the privilege to spend a night in the desert. और रेगिस्तान में रात का समय बिताने का एक मौका, एक सौभाग्य मुझे मिला। I was in Dubai and, और मैं दुबई में था। and the guys took me out in the night in the desert. और रात के समय वो उस व्यक्ति ने मुझे उस रेगिस्तान में वो ले चला। I don't know, my prayer life really grew over there. और मैं नहीं जानता, सच में मेरे प्रार्थना जीवन वहां पर बहुत ही बड़ा, Because it was so dark. क्योंकि इतना अंधकार वहां पर था, अंधेरा। I was wondering, और मैं बहुत ही अचंभित होने लगा। what can come, I'd seen all these, children's movies, something comes through, hello, the mummy and all, और देखिए, ये बच्चों का जो प्रोग्राम या सारे मूवी मैंने देखे, moves जहाँ through पर the- कुछ तो ऐसा हिलता है या तो कुछ आ जाता है To अचानक, make matters worse, और बात को और भी बदतर होने के लिए, I'd seen a documentary about desert scorpions. और वो जो रेगिस्तान के जो बिच्छू होते हैं उसके बारे में मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। And all these things were running through my mind. और ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी। But that host over there, he was very gracious. लेकिन वो जो होस्ट था, वो व्यक्ति था, वो बहुत ही सौम्य था, कोमल था। He said, Pastor Mike, उसने कहा, पास्टर माइक, even that sister over there, she was very wise, और वो बहन वहां पर थी, वो भी बहुत ही बुद्धिमान थी। She said, Pastor, don't worry. उन्होंने कहा, पास्टर जी बिल्कुल We घबराइए have made a fire. और हमने आग यहाँ पर जलाई है। Just by the fire, these things don't come और close. वो आग वहां पर होने की वजह से ऐसे कोई भी वस्तु वहां पर नजदीक भी नहीं Snakes आती। will not come close. सांप तो बिल्कुल नजदीक नहीं आएंगे, The scorpions will not come only. और ये बिच्छू तो बिल्कुल आएंगे ही नहीं।
नहीं। I was like, wow. और मैंने कहा वाओ, I made one thing clear. मैंने एक बात पूरी हामी भरी, I wanted to sit close to the fire. मैं उस आग के करीब बैठना No, I चाहता know था। you are fooling around, but laughing at me. But if you would be in the desert at 2:30 in the night, you would do the same thing. अब देखिए, आप मेरी बातों को सुनकर हंस रहे हैं, लेकिन सचमुच अगर रात के 2:30 बजे आप रेगिस्तान में होंगे तो आप जरूर ऐसा ही करते हैं। In the same way, और उसी प्रकार से when the fire was burning, जब आग जल रही थी, no wild animals, कोई जंगली जानवर, no enemy dare come near the children of Israel. कोई जंगली जानवर या कोई दुश्मन जो है इस्राएल लोगों के निकट आने की हिम्मत नहीं करता People था। of God, listen to me. प्रभु के लोगों मेरी सुने, If this is true in the natural realm, यदि स्वाभाविकता से यदि ये बात सच है, then how much more in the realm of the spirit? आत्मिक क्षेत्र में कितना हद तक बढ़कर वो जो सच है। Somebody shout कोई hallelujah. हालेलुया चिल्लाए। There was a witch doctor और एक जादू टोना करने वाला था in Africa. अफ्रीका में। Please listen to this. कृपा कर इस बात को सुने, I heard his testimony. और इस गवाही को मैंने सुना है। He turned to the Lord और वो प्रभु के पास आ गए, and he wrote it in one of his books. और उन्होंने अपनी पुस्तकों में एक किताब में ऐसा लिखा, He said, Christians who carry the fire of God, और उन्होंने कहा मसीह लोग जो परमेश्वर की अग्नि को लिए चलते हैं, they are like a full light in the realm of the spirit. पूर्णता से आत्मिक क्षेत्र में पूरे वो उजले हैं या पूरे लाइट से भरे हैं, They are like a light in the realm of the spirit. और आत्मिक क्षेत्र में बिल्कुल उजाला है, लाइट है। Somebody said, no, but give us a scripture. और किसी ने कहा नहीं नहीं, हमको वचन में बताओ। He said, when Jesus walked in the Galilee, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह जब गलील में चले, Isaiah, through the prophetic lens, he says, a light is risen in Galilee. Hallelujah. यशायाह ने भविष्यवाणी के उस प्रकटीकरण से कहा कि My गलील God, में hallelujah. वो उजाला जो है अंधकार में उजाला आया, A light has shone in the और darkness. अंधकार में बड़ी ज्योति चमकी। That is what happens when you carry the fire of God. और परमेश्वर की अग्नि को जब आप लिए चलते हो तब यही It's बात like a होती है। nuclear reactor inside of you. ये Hallelujah. मानो न्यूक्लियर रिएक्टर आपके अंदर है। And it हालेलुया। powers your whole system. Hey! और वो पूर्णता से आपके सारे सिस्टम को शक्तिशाली बना देता है। Somebody lift your hand and say, fire of the Holy Spirit, I कोई need हाथ you. उठाएं और कहें कि पवित्र आत्मा के सामर्थ मुझे आपकी Begin to जरूरत है। pray right प्रार्थना now. कीजिए इस May your समय। prayer life आप increase. में से सबों की May प्रार्थना you का get जीवन thirsty बढ़े। for the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बहुत ही प्यासे हो। In the name of यीशु Jesus. के नाम से। This is why the fire of God is so important. और इसीलिए परमेश्वर की अग्नि या आग बहुत ही जरूरी है। It will keep you away from demonic interference. वो आत्मिक या अशुद्ध आत्मा की बातों से, दुष्प्रभाव से आपको बचाए रखेगा, अलग रखेगा, दूर रखेगा। Now I want to bring something more interesting. अब और भी अधिक में दिलचस्पी भरी बात ले आना चाहता The हूँ। fire of God will keep you from sin. परमेश्वर की आग आपको पाप से दूर रखेगी। Please listen to this. कृपा कर इस बात को सुने। Jesus sat with sinners. यीशु पापियों के साथ बैठे, He was with the sinners, वो पापियों के साथ ही रहे, but he never sinned. लेकिन कभी भी उन्होंने पाप नहीं किया। The fire that he was carrying और जो आग वो लिए चल रहे थे, protected him from all uncleanliness. सारे अशुद्धता से उस आग ने यीशु को बचाए रखा। Hallelujah. हालेलुया। That fire will be in your वो आग eyes. आपकी आंखों में होगी। It will protect you from the lust of the world. संसार की अभिलाषा से वो आपको Oh, बचाए somebody shout hallelujah. हालेलुया चिल्लाएं Are आमीन you हालेलुया। listening right now? क्या आप इस समय सुन रहे The हैं? fire will touch your वो lips. आग आपके होठों को छू लेगी। Go with me to Isaiah chapter 6. यशायाह के 6वें अध्याय में मेरे साथ आए। There was a man of God called Isaiah. और परमेश्वर का एक जन था जिसका नाम यशायाह। You see, it starts, Isaiah chapter 6 starts like this. यशायाह के 6वां अध्याय इस प्रकार से शुरुआत In होता the है। year that King Uzziah died. जिस वर्ष उजिया राजा मरा, Why? क्यों? Because you see, Bible scholars tell us that prophet Isaiah was connected somehow to this king called Uzziah. और बाइबल के विद्वान बताते हैं कि ये यशायाह जो है Yes. उजिया राजा से किसी प्रकार से जुड़ा हुआ था। And he was very depressed. Oh God, now what will I do? और बहुत ही वो निराश मानो था कि अब मैं प्रभु मैं क्या करूंगा। And he cries, और वो पुकार उठा, God, what will I do? हे परमेश्वर अब मैं क्या करूं। At that time, और उस समय में God shows him a vision of heaven. परमेश्वर उसे स्वर्ग का दर्शन दिखाता है। Isn't it strange that when we are broken, God moves more in our lives? क्या ये अजीब नहीं है कि जब हम बहुत ही टूटे हुए होते हैं, परमेश्वर और भी अधिक हमारे जीवन में बहता है, When कार्य you करता think all is lost, है। जब आपको लगता है कि सब कुछ आना खो गया, सब कुछ God gives you a vision that takes you even higher. परमेश्वर आपको दर्शन देता है जो और भी आपको ऊंचाई पर ले चलता है। आमीन। Tell your neighbor,
it's not over. Hallelujah. Come on, come on. से कहें अब अभी खत्म नहीं हुआ है। You're going to rise. You're going to खड़े rise. होने वाले हो, आप Some of उभरने you are वाले in हैं। sickness. Some of you are in pain. You are going to rise in the name of आप Jesus. में से कुछ लोग बीमार हो, आप में से कुछ लोग तकलीफ में हो, आप में से सारे लोग उठ खड़े होने वाले हैं। Rededicate your life to Jesus. अपने जीवन को दोबारा यीशु को समर्पित करें And the fire of the Holy Spirit will come fresh on you right और पवित्र now. आत्मा की आग Yes. इस समय तरोताजगी के तौर पर आपको नई तौर पर See what Isaiah 6 verse 7 says. यशायाह 6:7 क्या कहता है, जरा देखें। You know, it says, He touched my mouth with that fire and said, Behold, since this has touched your lips, your sin, your iniquity, not just the sin, the deep iniquity is taken away and your sin has been purged. Hallelujah. और 6:7 कहता है, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इससे तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। केवल पाप ही नहीं लेकिन बहुत ही गहरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। Lift your hands and say, Holy Spirit of God, अपने हाथों को उठाकर कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, fire of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की आग touch my eyes, oh God. मेरी आंखों को छू ले। Come on, प्रभु। begin to pray. Say, fire of the Holy आइए Spirit, प्रार्थना करें, परमेश्वर के touch पवित्र my आत्मा, lips, oh God. मेरे होठों को छू Touch लीजिए, every part of my body, oh God. मेरे शरीर के हर एक भाग को छू लीजिए। Come, Holy परमेश्वर। Spirit, with your fire. पवित्र आत्मा अपनी अग्नि Come, के Holy साथ Spirit, आइए। with your पवित्र fire. आत्मा अपनी आग के In साथ the उतर आइए। name of यीशु Jesus. के नाम से Everyone beginning to pray. Begin to pray अरे right जब now. प्रार्थना करें You इस will समय। not return empty. और आप खाली हाथ नहीं You जाओगे। will receive something from the Lord. आप परमेश्वर से जरूर कुछ बातों को प्राप्त It will करेंगे। affect and impact every area of your life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में उसका प्रभाव और जो है बहुत ही असर पड़ेगा। In Jesus' name. यीशु के नाम से। And God's people said, प्रभु के लोग कहें Amen. आमेन। You know, if you are having a habitual sin in your life, देखिए आपके जीवन में यदि जो है लगातार ये आदत है, पाप की आदत सी है, and you are saying, God, how do I break this और आप habitual कहते हैं, sin? हे परमेश्वर, ये मुझे पाप की ऐसी जो आदत लगी, कैसे मैं इससे Now, छूटूं? you can't share certain things with everyone. अब कुछ ऐसी बातें होती है जो आप सबों को नहीं बता सकते, You know, they listen to you और लोग तो आपकी सुनते हैं and they'll publish it in tomorrow's Christian Times. और कल के क्रिश्चियन टाइम्स सबको बता देंगे They say, don't worry, I'll not tell anybody. और वो बोलेंगे, अरे डरो नहीं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। Tomorrow's Sunday Times, it will be there. और कल के संडे टाइम्स से सब आ जाएगी आपके And पास। somebody else will come and tell you, have you heard about कोई this? और आकर कहेगा कि क्या तुमने इस बात के बारे में सुना, And that's your story. और ये तुम्हारी कहानी होगी। There are no solutions with man, there are solutions in God. देखिए मनुष्य के पास जाने से कोई हल नहीं, परमेश्वर के पास हर एक बातों का हल है। I believe in counseling, और मैं सलाह में जो है विश्वास करता हूँ, but I believe in deliverance from God. लेकिन परमेश्वर की ओर से छुटकारे में मैं विश्वास करता You know, हूँ। yes, we need to share, please only do it with trusted people. हाँ देखिए हमें बताने की जरूरत है, लेकिन केवल जो भरोसेमंद लोग हैं ऐसे ही लोगों को अपनी बातें बता। But I want to share this. इस बात को मैं बताना If you are चाहूँगा। going through a habitual sin where it resurfaces again and again and again in your life, यदि आदत पाप की ऐसी आदत सी हो गई है जहां पर बार बार वो पाप बार बार वही बातें आप करते आ रहे हो you जीवन में, need to call upon the fire of तो God. आपको परमेश्वर की आग को पुकारना You होगा। can do that right now. और इसी समय ऐसा आप कर सकते You हैं। don't have to strike a holy pose, No. आपको पवित्र ऐसे आकार या ऐसे कुछ रुकने की जरूरत नहीं है। You don't have to strike a Superman pose. Here we go. No. और Just सुपरमैन cry के out. जैसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ऐसी Just कोई cry जरूरत- out and just pray. Begin to pray. Say, Lord, let your fire come upon my life. केवल पुकारे, केवल प्रार्थना करे और कहे, है परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन पर आ जाए In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Are you listening right क्या now? इस समय सुन रहे हैं? Look at Peter. पतरस की ओर Though he देखें, was an apostle, और जबकि वो प्रेरित था he had little bit of, little these things inside. और थोड़ी कुछ अलग बातें उसके अंदर थी, He could, when the time came, he could speak some words which are very dictionary. और जब समय आया तो कुछ अलग ही शब्दों को वो बोल रहा But था। the day the fire came, लेकिन जिस दिन वो आग उतर आई, his life became totally different. उसका Hallelujah. जीवन पूर्णता से बदल गया। That is what I'm telling you. यही बात तो मैं आपसे There कह was रहा a हूँ। man of God in Chennai who used to always, I used to refer to him as daddy. Hallelujah. चेन्नई में परमेश्वर के ऐसे जन थे, हमेशा मैं उनको डैडी कहता था। Thank God for such great men of God. परमेश्वर के ऐसे महान जन के लिए प्रभु का He was धन्यवाद हो। Prophet John Rabindranath. Hallelujah. जॉन रविंद्रनाथ
जगन्नाथ थे। What a man of God. और कितने अद्भुत I प्रभु had के the जन। privilege to sit at his feet, literally, hallelujah, और while he हकीकत में prophesied. उनके चरणों में बैठ के हुए भविष्यवाणी को मैं उनसे सुनता He था। used to always say the holy fire of वो God. हमेशा इस प्रकार से कहते थे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की पवित्र For अग्नि। many years I did not understand that. और कई सालों तक उस वाक्य को मैं समझ न सका। I knew it, हाँ, मैं जानता but तो I did था, not understand लेकिन it. मुझे समझ में नहीं आ रहा But था। now I do, hallelujah. मुझे आप समझ में आ चुका The है। holy fire of God. परमेश्वर की पवित्र आग, When it's inside you, और जब वो आपके अंदर है, you can see differently. तो आप बिल्कुल अलग रूप से Come देखोगे। on, lift your hands and say आइए अपने hallelujah. हाथों को उठाएं और बोले, मैं प्राप्त करता It हूँ। protects you, it protects और you. वो आपकी सुरक्षा करता है। वो Open आप- your mouth, open your अपना mouth, मुंह खोले, अपना मुंह and खोलिए। say fire of the Holy Spirit. बोलिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग। In the name of Jesus, यीशु के नाम it will revolutionize everything you do. और जो भी कुछ आप करते हो उसमें सारी बातों में एक परिवर्तन, एक नवीनीकरण में How you आएगा। deal with women, और कैसे महिलाओं से आप how you बर्ताव deal करें। with men, और किस प्रकार से आप पुरुषों के साथ how you बर्ताव deal करो। in secret, किस प्रकार से आप भेद या रहस्य में आप what you बर्ताव think करो। on your bed. अपने पटी पर रहते हुए कैसे आप क्या सोचोगे। It will change you, my friend. सारी बातें मेरे मित्रों आपको बदलाव। Somebody lift your hand, wave your hand, and say, Holy fire of God, कोई I हाथ need उठाए, you. हाथ हिलाकर कहे, Hallelujah. परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आग। Somebody say, हालेलुया। Holy Spirit, I need कोई you. कहे, पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत Come है। with your fire और आपकी आग से भर दीजिए। in the name of यीशु Jesus. के नाम से। Now, there will be challenges in maintaining the fire. देखिए, आग को बनाए रखने में चुनौतियां जरूर होगी। Come on, say this with me. मेरे Challenges साथ बोलिए, चुनौतियां। in keeping, in maintaining the fire. आग को बनाए रखने में चुनौतियां। This is so important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण If है। you go to the book of Leviticus, यदि आप लेवी व्यवस्था में जाओगे, if we just read it और जो हाल ही में अभी में हमने पढ़ा, in Leviticus 6 और लेवी व्यवस्था इसका 6वां अध्याय 12, 12वां वचन, he says, You shall remove the ashes. और वो कहता कि तुम उस राख को दूर करना, You shall remove the ashes. राख को निकाल देना। One of the challenges और कई चुनौतियों में एक चुनौती ऐसी है, was for the priest was to remove the ashes. याजक के लिए चुनौती थी उन राख को निकालना, दूर If करना। the ashes were not removed, यदि राख वहां से निकाल न दी जाए, please listen to this. कृपा कर सुने, The ashes would douse the fire, would just subdue the तो fire. राख जो है उस आग को बुझा देगी या कम कर देगी। So the priest had to remove the ashes, excuse me. आग को जो वो याजक को जो है उस राख को निकालना था, वहां से निकाल डालना था। Ashes, it's like it's burnt, gone. राख जो है वो जल चुकी है, वो मानो राख हो चुकी, जा चुकी है। Even God says, God cannot do anything with your ashes. So he says, I'll turn your ashes into beauty. Hallelujah. देखिए, परमेश्वर ने भी Are कहा you there? तेरे राख हो चुका है तो कुछ नहीं करता, राख जो है वो मिट जाए, वो दूर हो जाए। Ashes cannot bless anybody. और राख जो है वो किसी को आशीर्वाद नहीं कर सकती। Now, the ashes represents junk in your life. और राख जो है आपके जीवन में मानो किसी प्रकार का कचरा या कुछ अटका पड़ा है, ऐसा दिखाता है। Yes, those things need to be consciously eliminated from your life. ऐसी बातें जो बहुत ही गौर करते हुए अपने जीवन से बेदखल की जानी जरूरी है। You know, James chapter 4 and verse 4 says, याकूब इसका 4वां अध्याय का 4वां वचन You कहता है, cannot be a friend of the world आप संसार के मित्र होकर and a friend of God at the same time. आप साथ ही साथ परमेश्वर के भी मित्र नहीं हो सकते। Somebody asked the great man of God, David Yongicho. किसी ने महान परमेश्वर के दास डेविड योंगिचो से पूछा, He says, Wow, you got such a great church. और उन्होंने कहा, वाह, आपकी कलीसिया तो इतनी बड़ी कलीसिया आपके पास है। My goodness, you get up every day on Sunday and preach and the fire falls. प्रतिदिन आप उठते हो, रविवार के दिन आप प्रचार करते हो और आग उतर आती है। What is this? और ये क्या है? And he said, और उन्होंने कहा, For years, उन्होंने कहा कई सालों I तक have got up early in the morning at 5 o'clock and prayed. मैंने प्रतिदिन सुबह भोर के समय 5 बजे उठकर मैंने प्रार्थना की Oh, है। that's very good, Pastor. और That's ये very तो good. बहुत ही अच्छी बात है पासवान जी। He said to be in prayer at 5 o'clock in the morning, और उन्होंने कहा सुबह 5 बजे प्रार्थना में होने के लिए I have to get up at 4:30. मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता है। And to get up at 4:30 in the morning, और सुबह 4:30 बजे उठने के लिए I have to sleep at 10:30. मुझे रात Or को 10 o'clock. 10:30 बजे या 10 बजे तो भी
सो जाना चाहिए होता। He says, for because of that, और उन्होंने कहा इस बात के I वजह से cannot go for every dinner party. मैं हर एक डिनर पार्टी के लिए नहीं जा सकता, I have to say no to many people. और कई लोगों को मुझे ना कहना पड़ता है। He says, I cannot be a friend of the world and be a friend of God at the same time. और उन्होंने कहा कि मैं संसार के साथ मित्रता और साथ ही साथ में परमेश्वर से भी मित्रता एक ही साथ नहीं रख Catherine सकता। Kuhlman often said, nowadays people, they will deny, oh, we don't have to pay the price. We know Jesus paid the price. My friend, this is all good. This is all good. They have done it earlier. Now they speak all these things. देखिए कुछ लोग अभी हैं बोलते हैं हमें त्याग करने की जरूरत नहीं है, वो त्याग और वो सारा दाम तो यीशु मसीह ने चुका दिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। Paul says, work out your salvation. पौलुस कहते हैं अपने उद्धार को पूरा करने का प्रयत्न करो। Don't let these people fool you. और ऐसे लोग आपको जो है दिशा भूल There has to be a separation in your life. आपके जीवन में एक अलगाव होना जरूरी है। Touch somebody and say, there has to be a separation. किसी को छुए और कहे कि एक अलगाव होना You जरूरी है। cannot go on TikTok or what do you call that, reels, just keep on switching from one reel to another and not sleeping till 1 o'clock in the night. और ऐसा नहीं कर सकते आप रील No, पर रील sir. देखते जा रहे हो और रात को 1 बजे तक जब तक नींद नहीं आती तब तक आप देखते जा रहे हो, ऐसा नहीं And the कर phone सकते। just falls on your chest and then you sleep. और No, अंत में ऐसा होता कि no. फोन आपके सीने पर ही गिर जाता और आप सो जाते You हो, have ऐसा to नहीं। make a conscious decision. आपको बहुत ही सचेती का निर्णय लेना I होगा। have to sleep at this time. नहीं, मुझे इसी समय सोना है, No matter what. चाहे कुछ भी हो जाए। My phone gets switched off. और Hey! मेरा फोन स्विच ऑफ होना है। Come on. Hallelujah. हालेलुया। Try this. और ऐसा प्रयत्न करके देखें। Friend of the world, और संसार का मित्र an enemy of God, और तो परमेश्वर का शत्रु है, or you be a friend of the Lord या आप परमेश्वर के मित्र बने and an enemy of the world. संसार के शत्रु Are बन you जाएं। listening, church? क्या मेरी बातें सुन रहे हैं? Some things have to switch off. और कुछ तो बंद होना होगा सर। You can't just go anywhere out, roam here and there. No. आप कहीं पर भी नहीं जा सकते, यहाँ वहाँ भटक रहे हो, घूम रहे हो, ऐसा नहीं। 2 बजे आए, रात को 2 बजे आ गए 2:30 को सो रहे हैं. आणि रात्री 2:30 वाजता झोपेला जाता। No, sir. नहीं, ऐसा नहीं It चलेगा। has to be on time. नहीं, बराबर समय पर होना जरूरी Get your है। life right. अपने जीवन को सही कर लो। Isaiah told Hezekiah, get your life right. यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा अपने जीवन को सुधार Ashes out. और सारी राख बाहर हो जाए। Somebody touch somebody and say, कोई किसी को छुए और कहें ashes need to move और out. राख को निकाल देना है। I don't invite many people in my house. No. मेरे घर पे कई लोगों को मैं बुलाता नहीं हूँ। No. Why? नहीं। Because khatirdari, ye dari, wo dari, all that stuff. And then your prayer life is gone for a toss. और जब इस प्रकार से आप करते हैं तो आपका जो प्रार्थना जीवन ही उड़ जाता है। Many times when I go for weddings, I say I'll be there for like 15 minutes, half an hour, that's it, finish. और कई बार जब शादियों में मुझे बुलाया जाता है, मैं शादियों में जाता हूँ और मैं कहता हूँ मैं केवल 15 मिनट या आधा घंटा रहूंगा, बस उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। People don't understand. लोग इस बात को समझते नहीं। They want you to prophesy next morning. वो चाहता कि अगले दिन आप जो है भविष्यवाणी करें And then they want you to dance also. और वो चाहते कि आप नाचे भी Then they want you to say the grace also. और वो चाहते हैं आप अनुग्रह भी बोले। Everything they want you to do. वो चाहते हैं आप सभी आप ही They करें want you to meet all their और 500 वो चाहते हैं guests. कि वो सारे मित्र और सारे रिश्तेदारों से They आप want you उनसे to मिलें। click photographs with और वो everyone. चाहते हैं कि सारे लोगों के साथ आप फोटो निकालें। But you have to remove the ashes. आपको आपकी Oh, राखों को come दूर on, निकालना somebody. होगा। आमेन, हालेलुया। Do you want a higher life in God? क्या आपको परमेश्वर में ऊंचाई का जीवन Do you चाहिए? want to grow? क्या आप Hallelujah. बढ़ना चाहते हो? Businessman, listen to me. व्यवसायी लोग मेरी बातों को Don't सुने। think this fire anointing is only for preachers. No. ये मत सोचो कि ये आग का अभिषेक केवल प्रचारकों के लिए नहीं। Students, the fire anointing is for you. Hallelujah. विद्यार्थियों, आग का अभिषेक आपके लिए भी Like है। Daniel, you'll rise up. Hallelujah. दानियल तो खड़ा हो जा। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Like Esther, you will be in the political realm, in the administration realm. Hallelujah. एस्तर के जैसे आप जो है राजनीतिकता में होंगे, आप सुधार की बातों में होंगे। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Somebody say, I'm receiving. कोई कहे मैं प्राप्त कर रहा हूँ। And the second thing, और दूसरी बात, the second challenge, only 2 challenges. दूसरी चुनौती, केवल 2 ही चुनौतियां हैं। Every morning, हर प्रति भोर के the समय Bible says in the book of Leviticus, the priest had to put the wood. और लेवी व्यवस्था में बाइबल बताती है कि याजक को उस वेदी पर लकड़ियां रखनी है। The priest had to put the wood. याजक को प्रति भोर सुबह वहां पर लकड़ियां वेदी So पर they had to remove the ashes तो राख को निकाल देना है and they had to put something. और कुछ बातों को लकड़ियों को रखना है। No wood, कोई लकड़ी नहीं, no fire. आग भी नहीं, Otherwise, the fire would die down. नहीं तो फिर आग वहीं पर खत्म So हो जाएगी। something has to come out, तो कुछ तो निकलना है something has to go और in. कुछ तो डाला जाना है। I was asking the Lord, what is the wood? मैं पूछ रहा था, प्रभु ये लकड़ी का अर्थ क्या है?
And the Holy Spirit और says, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, the wood is you. लकड़ियां तो है तुम हो। Hallelujah. हालेलुया। You know, I was looking somebody wood, maybe my wife, my और children मैं would, किसी और को देख रहा, मेरी पत्नी है क्या, मेरा बच्चा है क्या? thoda, because we always surrender others. क्योंकि हम हमेशा दूसरों की ओर देखते हैं। The wood is you. लकड़ी जो है वो आप खुद हो। Where you lay yourself and say, Lord, let your fire fall. आप अपने आप को सौंप दे और वो रख दे वहां पर, कहे प्रभु आपकी आग Every उतरा। morning you need to be diligent to put yourself on the altar of God. हर रोज सुबह आप इस बात पर गौर करना कि अपने आप को परमेश्वर की वेदी के ऊपर रख The देना है। flesh needs to be crucified. शरीर क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। Somebody say, I'm receiving right और कोई now. कहे इस समय मैं प्राप्त कर रहा हूँ। Keep a fixed time. एक ठहराया हुआ समय रखिए। Are you listening? Whether you are in UK, London, Africa, US, whatever your time, that time is for the Lord. आप Hallelujah. यूके में हो, लंदन में हो, आप कहीं पर भी हो, वो समय सुबह का परमेश्वर के लिए है। You have to be diligent in your pursuit of God. और परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को ढूंढने में आप बहुत ही सतर्क रहना। Maybe you're चौकस रहना। working. हो सकता है कि आप काम कर रहे So होंगे, you need to be diligent. तो तभी भी उसमें भी आप जो है लगातार सचेत रहना You है। know, many people, they just get up anytime, they just, do something और anytime. कुछ लोग होते हैं कभी भी उठते हैं, कभी भी कुछ भी करने लगते हैं। Listen to me. मेरी बातों को सुनिए। You are watching me. यदि आप मुझे देख रहे हैं Don't fear witchcraft. और जो है जादू टोने से बिल्कुल डरे नहीं, Don't fear all these things. और इन सारी बातों से बिल्कुल डरने की जरूरत Because नहीं है, God is greater than all those क्योंकि things. परमेश्वर इन सारी बातों से बढ़कर है। Somebody say, I'm receiving right कोई now. कहे इस समय मैं प्राप्त कर रहा हूँ। Can I say one more important thing? क्या मैं और एक महत्वपूर्ण बात बोल Those who सकता हूँ? carry the fire of God, जो परमेश्वर की आग को लिए चलते they हैं, will have a healthy life in Jesus' name. यीशु के नाम से बहुत ही सेहतमंद उनका जीवन होगा। I'm telling you. मैं आपसे कहता Only when हूँ, the fire of God becomes a little, you get stressed out, you don't move. That time the enemy tries to attack you. देखिए जब परमेश्वर की आग नहीं होती तो आप थक जाते हो और जो है आप ऊब जाते हो, तब शैतान आप पर हमला करता है। John G. Lake, we need to increase that fire. और जॉन जी लेक, देखिए हमें उस आग को बढ़ाने की जरूरत है। One day, John G. Lake, this is a great man of God. एक दिन जॉन जी लेक, ये जो परमेश्वर के महान दास थे, He was caught in a bubonic plague which comes through rats. वो चूहों के द्वारा जो अशुद्ध आत्मा की ओर से जो नहीं, महामारी plague, आती है, महामारी, वो उससे वो फंस गए। So his team, और इसलिए उनकी टीम they used to work among those people. और उन लोगों के बीच में जाकर ये काम किया So करते थे। the people who were working over there says, how come this plague is not affecting you? तो वो वहां पर जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये महारोग या ये महामारी आपको कैसे नहीं लग रही? And John G. Lake, it's documented in his autobiography. देखिए ऑटोबायोग्राफी में ये जो है उनकी डॉक्यूमेंट्री इस प्रकार से है। He told that fellow, put that thing on my hand. और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि उस वस्तु को मेरे हाथ में रखो, And they put the germs on his hand. और उसके हाथों में कीटाणुओं को रखे गए। And they said, see it under the microscope. और उन्होंने कहा कि माइक्रोस्कोप में आप देखो इसको, The germs were dying. और वो जो कीटाणु है वो मर रहे The थे, germs were dying. और वो जो कीटाणु है मर रहे थे। When I read about such things, देखिए ऐसी बातों के बारे में मैंने सुना there is पढ़ा a है। dimension of God's grace. परमेश्वर Hallelujah. का अनुग्रह का ऐसा There आयाम is a है, dimension of the fire of और God. परमेश्वर की आग का ऐसा आयाम है। If somebody can get hungry for this, that's my goal. कोई Hallelujah. अगर इस प्रकार से इस बात के लिए यदि प्यासा है तो ये मेरा लक्ष्य है। Today, I tell you, those viruses and those things, when that hand of God will come on such people, that thing has to bow in Jesus' name.